Hello students. Hello students. I am M.K. Vijay, your SST teacher. In this video we are going to discuss about the President of India. And as you know, the post of President is on the according to article number 52, because it says there shall be a President of India. Now we are going to discuss about the qualification of the President. The first qualification, he must be a citizen of India. मीन्स भारत का नागरिक ही प्रेसिडेंट बन सकता है. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. इसके लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. थर्ड, ही मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए. He must not be holding any office of profit under the central or state government. केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत उसे किसी लाभ के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए. कोई अगर नौकरी करता है दोनों के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी, तो वह लाभ का पोस्ट माना जाता है. बट डू यू नो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड प्रॉफिटेबल. लेकिन यही अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है, एमपी है, तो ये सब पोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं माना जा सकता है. मतलब उस पोस्ट पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है. He should not be a member either of the parliament or the state legislature. He had to resign. उसे पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, न तो राज्य के विधानसभा का. अगर है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ ऑफिस और टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. एज यू नो 5 ईयर्स. उसका कार्यकाल 5 साल है. एज वेल एज वैकेंसी. इन केस ऑफ डेथ, अगर वह राष्ट्रपति रहते हुए मर जाए, जैसे जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद. रिजाइनेशन, अगर वह रिजाइन दे दें. रिमूवल बाई इम्पीचमेंट, अगर उन पर महाभियोग लग जाए. अदरवाइज फुलफिलिंग द टेन्यूर, अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, द पोस्ट में बी वैकेंट. एंड वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड अप इन नो केस लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सच वैकेंसी. जिस दिन से यह खाली हुआ पोस्ट, 6 महीने के अंदर पोस्ट को भर जाना चाहिए. इलेक्शन हो ही जाना चाहिए. नाउ वी हैव नीड टू डिस्कस इम्पीचमेंट. महाभियोग. इम्पीचमेंट इज ए प्रोसीड्यूर इन विच द elected members of parliament and elected members of a state legislature are participating, and then if the more members are present in favor of impeachment, impeachment can pass, and then the post in against of impeachment has passed may be removed. ऐसी प्रक्रिया के द्वारा जिसमें लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, स्टेट विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं. अगर ज़्यादा बहुमत इम्पीचमेंट के पक्ष में होता है तो वह संबंधित व्यक्ति इम्पीचमेंट पास होते के साथ अपने पोस्ट से ख़त्म माने जाते हैं. इम्पीचमेंट is essential
for removal of the post of president, vice president, chief justice and such type of bigger post. Now we are going to discuss president election. President is elected by an electoral college. In this college, the elected MP and MLAs are included. President election is a special election that is considered as indirect election because people are not participating in it. The representative of peoples are participating in it. Due to it, it is known as indirect election. And do you know, election of president is based on a process of proportional representation on single transferable vote system. एक ही व्यक्ति जितना भी मेंबर होगा, जितना भी कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट का, वह सब को वोट दे सकता है, सबको वोट दे सकता है और हर एक सदस्य का वोट वैल्यू अलग अलग होगा। लो बैटरी। Now we are going to discuss about the power of the president. Now first, as we have discussed in the previous video, power related to Council of Ministers, because Council of Ministers in which PM is included are appointed by President, as well as military power. As you know, our President is the known as the Supreme Commander-in-Chief of our all wings of Army, Air Force, Navy, Army, also head is President. So it has some military power also. As well as next is control over appointment. A lot appointments are being done by President. As we have discussed about it, the appointment of judge, appointment of election commissioner, appointment of governor, a lot such type of posts are present that are appointed by President. Next is appointment of different commissions, just like Finance Commission, Election Commission, Language Commission, Interstate Council, as well as BP Mandal Commission. Such type of commissions is also appointed by President. Now we are going to discuss about administrative power. Do you know, our President can take information about center and state administration. हमारे राष्ट्रपति को हक है कि वह राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन की जानकारी लेते रहे, और इन लोगों को देना पड़ता है. We have discussed under the PM. PM is conveying message about the administration to President.
because PM is working as a link between cabinet of minister and president. दोनों के बीच कड़ी का काम करते हैं, तो इंफॉर्मेशन देते हैं. Now diplomatic power. Our president is appointing ambassador, high commissioner. Do you know? In some countries, ambassador is known as high commissioner, just like Pakistan, South Africa, Bangladesh. In such countries, our ambassador is known as high commissioner. उसका कारण है कि वैसे देश जो इंग्लैंड के कॉलोनी रह चुके हैं, वहाँ हमारा एम्बासडर नहीं कहलाता है, हाई कमिश्नर कहलाता है. और जो देश कॉलोनी नहीं थे, वहाँ एम्बासडर कहलाता है. जैसे नेपाल में एम्बासडर होता है, लेकिन बांग्लादेश में हाई कमिश्नर होता है. एज वेल एज द नेक्स्ट administration of union territory. The government of union territory runs under the name of president. शासन जो चलाया जाता है यूनियन टेरिटोरी में, वह प्रेसिडेंट के नाम से. एज वेल एज कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नर के द्वारा ये उसे कंट्रोल भी करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेजिस्लेटिव पावर. टू कन्वेन एंड प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट टाइम व्हेन द पार्लियामेंट is fulfilled with the elected members. First time the call first session and preceded by president. The session of parliament is called by president, as well as second to inaugurate the parliament. First time inauguration work is being done by president, and to address and send message to the parliament. और जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है पहला दिन, तो ये संबोधित करते हैं और राष्ट्र के नाम, पार्लियामेंट के नाम अपना मैसेज देते हैं. टू कन्वेन द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. इन समटाइम्स इफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैज एनी डिस्प्यूट, they can summon, they can call, they can convene the joint meeting. And do you know, the joint meeting is preceded by president. अगर किसी कारणवश ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए, तो उस ज्वाइंट मीटिंग को की अध्यक्षता प्रेसिडेंट ही करते हैं. एज वेल एज नेक्स्ट नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. As we have discussed, in the Council of State 12 members and in House of People 2 members from Anglo-Indians nominated by President. Next is to dissolve the Lok Sabha. They can dissolve the Lok Sabha in various substance, in various circumstances. जस्ट लाइक अगर लोकसभा में कोई दल बहुमत ना लावे और कोई कोलिशन भी ना बने, तो वैसे में ये लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं. ये अपने मन से प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुमत नहीं लाया तो अंततः डिजॉल्व कर सकते हैं. ही कैन गिव अप्रूवल टू द बिल. विदाउट हिज अप्रूवल नो एनी बिल कैन टर्न एज द एक्ट. जब तक वो बिल को अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा. एज वेल एज ही कैन इश्यू ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस कभी कभी प्रेसिडेंट
अपने ही कोई कानून बना देते हैं, लेकिन उसके लिए उचित परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे लोकसभा का सत्र नहीं है और कानून बनाने की आवश्यकता आ गई, युद्ध छिड़ गया और सत्र नहीं है, क्या होगा? कौन कानून बनाएगा? तो प्रेसिडेंट कानून बना दे सकते हैं। सच कानून इज नोन एज ऑर्डिनेंस। लेकिन लोकसभा का जब सत्र होगा तो 6 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। कभी कभी लोकसभा डिजॉल्व होता है और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो वैसे में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा, जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा, तो राष्ट्रपति के ऑर्डर को स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अन्यथा वह निरस्त माना जाता है। Now we are going to discuss about financial powers. First, introduction of money bill. No any money bill can be introduced without the finding approval of president. जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेंगे तब तक मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है लोकसभा में। कंट्रोल ओवर कंटीजेंसी फंड, जो उन लोगों के लिए चाय नाश्ता मरम्मत की का जो फंड होता है, डेट इज कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर द वेरियस पर्पसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस कमीशन में बी सेट अप। वन इज परमानेंट एंड वन इज नॉन परमानेंट। कभी किसी आर्थिक बिंदु पर बहस करने के लिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट। जूट इज एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट, but excise duty is imposed. The excise duty is distributed between center and state. It is duty of president. जैसे जूट कई राज्यों में होता है, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, तो जो भी एक्साइज ड्यूटी आता है, केंद्र सरकार का अलग हिस्सा है उसमें और राज्य सरकार का अलग हिस्सा है। जितना उत्पादन होता है उसके आधार पर उसके अंश का निर्धारण प्रेसिडेंट करते हैं कि असम को कितना दिया जाए, बिहार को कितना दिया जाए, बंगाल को कितना दिया जाए, उड़ीसा को कितना दिया जाए। टू गिव रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने ऐसे ऑडिटर जनरल का, कंट्रोलर का रिपोर्ट पेश करते हैं प्रेसिडेंट। उसकी जानकारी संसद में दी जाती है। इन सच पर्पस द ज्वाइंट मीटिंग ऑल्सो इज कन्वेन्ड। ऐसे कार्यों के लिए भी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जुडिशियल पावर। The appointment of judge of the Supreme Court and High Court. The chief judge is also appointed by the president, but with the advice of chief judge, they appoint judge of the Supreme Court and judge of the High Court. Removal of Dan as well as impeachment. अगर इम्पीचमेंट किसी पर लग गया तो उसे रोक सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं। पनिशमेंट अंडर कोर्ट मार्शल, एज वी हैव डिस्कस्ड, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल विंग्स ऑफ आर्मी। ड्यू टू इट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट मार्शल इज गिवन अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कोर्ट मार्शल जो किया जाता है वह प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। पार्डन एंड रिप्राइज द
पनिशमेंट, वह किसी भी पनिशमेंट को या तो माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैन पार्डन द कैपिटल पनिशमेंट, अगर किसी को मौत की सजा मिली है तो उस सजा को वो चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, एक व्यक्ति को एक थाप मारा तो मर गया, वो क्रिकेट का खिलाड़ी था, भारत को उसकी आवश्यकता था, इसलिए उसके कैपिटल पनिशमेंट को उन्होंने माफ कर दिया। इट इज such type of power is known as judicial power. Now we are going to discuss about the emergency power. According to article number 352 to 360, emergency powers are present in the hands of president. President can declare emergency in the following situation. प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन निम्न सिचुएशन के आधार पर। नेशनल इमरजेंसी, अगर कहीं देश में आर्म्ड विद्रोह हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। गृह युद्ध हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, अगर कोई देश का एक भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए न तैयार हो तो इमरजेंसी लग सकती है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर दुर्भिक्ष आ जाए, ऐसी अवस्था आ जाए कि हम अपने जनता का भरण पोषण नहीं कर सकते, जैसा पाकिस्तान का वर्तमान सिचुएशन है, तो हम फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। And in the next video we will discuss about the judiciary, and again we are saying if you have any problem in this video you can write under the comment section. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कहीं समझने में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। इससे जब डाउट क्लास लेंगे तो उसमें हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स ऑल। और